Today we will learn how to automate the login process for the for FIRE's algo trading. Okay, so we don't need to generate the token daily and enter the details manually. We'll create a program every day. When you run it, it will fetch the token and give you the FIRE's object, using which you can call the functions and all the features which are available by the FIRE's API. So we will use the FIRE's version API 3. So first we'll search for FIRE's API. Okay, and this is a my API. We go there, and here we will go to the dashboard. You have to log in. Okay, you have to log in into this. Once you log in, you will get the details. You have to log in into the platform and you will get the options dashboard, and we'll open it in a new tab, documentation, and we'll go to the dashboard. Here you will get the option create app. Okay, so first we have to create an app to get our client ID and secret key, using which we will generate the token. So we give it a name login. We can give any URL. Okay, so we give it here 127. I'm giving 9696. You can give any port, doesn't matter. Okay, 127.0.0.1 is your local IP address. Okay, loopback address basically. Description you can give any. If you don't want to give, no issues. Here we don't have to do anything, leave it blank. Okay, we give because we'll be fetching the historical data, so yes. We'll be fetching transaction info, yes. We'll be placing orders, yes. Okay, and I accept, and we create. Okay, it is asking, we'll delete it, and we create it. So if we look at here, we have this app created. It is currently inactive, but once you make a call to it, it will become active. So what are the details we need from here is app ID and the secret key. Okay, so we'll copy the app ID. I created the program. I'll explain it. First, just store. So client ID equals to this. Okay, then we need the secret key, and this is our secret key. Okay, now these are the two details we need, and third one is, once you log into the FIRE's app, you are asked the 4-digit pin, right, for the login. That pin also you have to mention here. Okay, so let's say your pin is 0101. So using these details, we will automate the login process. So here you will see, will not be generating the token every day manually. Everything will be automated. You need not to log in, fetch the URL and anything, auth code and nothing. You have to do it once in a 15 days. Okay, so first we go to the FIRE's API. Okay, here if we go here, so what is the login flow for the user? First we have to create the app. I have shown you how to create the app. Okay, get this client ID, secret this redirect URL. Okay, now if you see the Python code for that, here it is. We have to import this library. You have to import this library, client ID, secret key, redirect URL, response code, state code. These remains static, so need not to worry about that. Then we can create a session. Okay, and once we create the session, we can get the auth code from it. So let's jump into our program. Okay, so first we have imported that FIRE's library. Then we create importing one hash lib. I'll explain why we need it. Then we are importing OS library, using to use the OS functions, date time, JSON, because the token we will be exporting and importing, that will be in the format of JSON, and a request because we will making a HTTP request to the FIRE's URL to generate the token. Okay, so first go to this main
function, that is def fires object. Okay, so it expects 3 parameters from you: client ID, secret key, and pin, which we have already copied from the app. We have generated it. Now redirect URL is already defined here. This is the same which we mentioned in the app. This is here, so we can look at here, add it, and this is the URL. Okay, now these remains static, no need to worry about that. Then we are creating 2 directories. Okay, one is a token file, one is a daily token file. So what is the difference? Token file is something will generate the first time a token, okay, that will be valid for 15 days. Okay, and from this token you can generate a token for daily usage. Okay, that is valid only for 1 day. So every day new token will be generated, but this one has the validity of 15 days. So every 15 day you have to generate it manually for 15 days. It will every day it will fetch the token file, and from this token it will generate the new token, daily token. Okay, we have created this directory. If we look at it, this is the directory. Currently it is empty. Okay, there is no token. So first time we will generate it. Now what we are doing is every day, I will come to this part later, but what we are doing is here every day we are checking if, because every day 9:15 market opens, so before that or by that time if you are running it, you have to generate the daily token file. Okay, so what it is doing is, if current time, we have defined the variable current time, dt.datetime.now. so the current time is fetched into this. Now it is matching if current hour is less than 9, और अगर आप सुबह 8 बजे चला रहे हैं, 7 बजे चला रहे हैं, 9 बजे चला रहे हैं, या 9 बजे से पहले चला रहे हैं, ओके, रन कर रहे हैं, तो वो चेक कर रहा है, या 9:17, तो मार्केट ओपन होता है 9:15 पर, हम उससे पहले देख रहे हैं 9:50 9:16 तक अगर आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो इट विल फर्स्ट चेक removing daily token file. Okay, because every day is a new day session. So what it will do is, it will check if this path exists. So this is the file. If it exists, it will remove. If doesn't exist, it will not remove. Okay, now as I told you that this token file, the main token file which we will generate, is valid for 15 days. So we are checking whether this file, because now we have to generate this token, daily token, from this main token. So we have to check whether this token is older than 15 days. If it is older, then we have to generate this file as well. Okay, so we are checking whether it is older than 14 days. So how to check it? I have created another function, is file older than. So what it does, it takes the file and the threshold days. So file is a token file which has 15 days validity, and threshold is 14 days we have defined here. Now it will check if it returns true. Okay, because this is the function, right? It is calling, we are calling this function, it will return true or false statement. So if it is returning true, then we will remove it. Okay, removing the token file. Otherwise we'll say it is not older than this threshold. Understood? अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, तो you can pause it, understand it. If any questions you have, you please आप comment में please tell me. I'll explain everything. Okay, even I'll create a blog for it, so you can read it from there. You can copy the code as well. I'll provide the link as well for the blog. We'll understand this one कि 14 days से पुराना है कि नहीं है. We'll understand this function a bit later. First we generate the token itself. Okay, so as I told you, now हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमने चेक किया कि 14 डेज से ओल्ड है कि नहीं है. अगर ओल्ड है तो फाइल ही रिमूव हो जाएगी. फाइल रिमूव हो जाएगी तो दिस विल रन. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ पर 14 डेज से ओल्डर नहीं है, ठीक है, न्यू फाइल है, तो फाइल को हम डिलीट नहीं करेंगे, तो os.path.exist दिस विल एग्जिस्ट. सो एक बार आप जब प्रोग्राम रन करेंगे उस टाइम तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि दिस इज रनिंग फर्स्ट टाइम, लेकिन जब सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम एक डेली टोकन फाइल जनरेट करेंगे. फर्स्ट टाइम जो टोकन जनरेट करेंगे दैट विल बी अ मेन टोकन फाइल. ओके, उस टोकन से 15 डेज तक हम डेली एक रिफ्रेश टोकन जनरेट कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर योर एल्गो ट्रेडिंग, कॉलिंग ऑल द फंक्शंस. ठीक है,
तो हम सबसे पहले हमने क्या किया है, वी हैव चेक्ड कि अगर हम 9 o'clock से पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 9:15 से पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो डेली टोकन को डिलीट कर देगा ताकि हम नया टोकन जनरेट कर सकें। उसके बाद वो चेक कर रहा है कि जो हमारी मेन टोकन फाइल है 14 डेज से ओल्डर है या नहीं है। अगर ओल्डर है तो हमें नया फाइल जनरेट करना पड़ेगा, और नहीं है तो हम उसी से जनरेट करेंगे। तो इफ़ दिस एग्जिस्ट, अगर ये पाथ एग्जिस्ट करता है, ये फाइल एग्जिस्ट करती है मेन टोकन फाइल, तो उसको हम रीड करेंगे। ठीक है, ये दिस इज द टोकन। ओके, टोकन डेटा इक्वल्स टू जेसन डॉट लोड और फाइल क्या है, फाइल हमारा कुछ नहीं है, फाइल हमारा वही है जो हमारी डेली टोकन फाइल है। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, सो नाउ वी हैव कम हियर। यहाँ पे क्या है, वो डेली टोकन चेक कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने 9 बजे के बाद 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम आप कर रहे हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, और आप ऑलरेडी सब कुछ जनरेट कर चुके हैं, तो बार बार तो आप ये टोकन जनरेट नहीं करेंगे ना। मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे आपको सिर्फ वो तभी चेक करेगा कि अगर 9 बजे से पहले है तो डेली टोकन जनरेट करेगा, तो वो आपको पहले कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक बार जनरेट हो गया तो वो फर्स्ट चेक करेगा डेली टोकन फाइल एग्जिस्ट करती है क्या। अगर करती है तो इट विल लोड दैट फाइल ओके इनटू दिस वेरिएबल, और यहाँ से हम डेली टोकन जो है वो निकाल लेंगे। ओके, so that is the access daily token data dot get, because it is a JSON, so get is a function here, and dot get and access token, इसके अंदर जो access token है we are fetching it, और ये हमारा डेली टोकन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपने 9 बजे से पहले रन किया है, तो दिस विल नॉट एग्जिस्ट क्योंकि पहले डिलीट हो चुका है। एल्स विल एग्जीक्यूट, इसके अंदर क्या होगा, फिर ये चेक करेगा कि मेन जो फाइल है जिससे हम डेली रिफ्रेश टोकन जनरेट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है क्या। ठीक है, तो अगर वो 14 डेज से ओल्डर होगी तो डिलीट हो जाएगी, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, और 14 डेज से ओल्डर नहीं है, न्यू है, तो ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो डिलीट नहीं होगी। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो टोकन फाइल एग्जिस्ट, ऐसे ही हम फाइल को ओपन करेंगे, लोड करेंगे, एक्सेस टोकन ये हो जाएगा, रिफ्रेश टोकन, इसके अंदर से रिफ्रेश टोकन आ जाएगा। ठीक है, टोकन डॉट डेटा डॉट गेट रिफ्रेश टोकन, और फिर हमारे पास रिफ्रेश टोकन हो गया जिससे हम फायर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो फाइल भी ओल्ड 14 डेज से ओल्ड है वो डिलीट हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, टोकन फाइल डू नॉट एग्जिस्ट हेंस जनरेटिंग अ न्यू वन। ओके, तो यहाँ पे सेशन क्या होगा, ये फंक्शन आपका पूरा यहाँ अवेलेबल है फायर्स का, डोंट वरी। सी सेशन इक्वल्स टू फायर्स मॉडल, सेशन मॉडल, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, फायर्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल, तो मैं सिर्फ ये वाला जो है फायर्स का है, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अवेलेबल है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल टू सेशन डॉट जनरेट डॉट आउट कोड। तो जब आप ये रन करेंगे तो आपको एक URL प्रोवाइड होगा जो आपको फायर्स देगा, उस URL को लेके आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। ओनली दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इट विल आस्क यू ऑथेंटिकेट URL टू जनरेट द कोड, वो आपको प्रिंट करेगा, आपसे मांगेगा, जब आप इसे URL इसे पेस्ट करेंगे तो आपको एक ऑथ कोड जनरेट होगा। ओके, वो ऑथ कोड आपको पेस्ट करना है। एक बार इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तक। अभी देखिए हमारे पास कोई टोकन फाइल नहीं है, कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो ये कोड यहाँ पे रन होगा, तो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपका टोकन फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, वी आर रनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, टोकन फाइल डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो टोकन फाइल डू नॉट एग्जिस्ट, जनरेटिंग न्यू वन, ऑथेंटिकेट URL टू जनरेट द ऑथ कोड। तो फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, दिस इज द URL, तो ये आपका जो है ये रेस्पॉन्स है, सेशन डॉट जनरेट डॉट आउट कोड, जो फायर्स ने हमें दिया है। ठीक है, इसको हमें जस्ट कॉपी करना है, अपना ब्राउजर में जाना है जहाँ पे आपका लॉगिन होगा। ऑलरेडी मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, वरना आपको ये पूछेगा आपका पिन और OTP वन टाइम पासवर्ड। ओके, इट इज आस्किंग फॉर द परमिशन, आई एक्सेप्ट इट, एंड दिस इज योर कोड। देखिए ये आपका वही रिटर्न URL है जो हमने डाला था। ओके, कोड इज ऑथ कोड इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से हमें कॉपी करना है EY से, ऑथ कोड इक्वल्स टू से, और एंड तक जाना है, एंड में यहाँ तक, एंड स्टेट इक्वल्स टू नन। ओके, तो ये एम्परसेंट जो है इससे पहले जो है ये हमारा ऑथ कोड है, ये हमने कॉपी किया, यहाँ पर आकर हम पेस्ट कर देंगे, और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे व्हाट इट विल डू, ऑथ कोड, इसके बाद ये फिर से कॉल करेगा
ठीक है। सेशन इक्वल्स टू फायर्स डॉट सेशन मॉडल, ये भी फायर्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है रिक्वेस्ट पैरामीटर फॉर स्टेप 2। देखिए एक बार आपके पास ये ओथ कोड आ गया है, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर फॉर स्टेप 2 है। अगर ओथ कोड आपके पास, एक बार आपने ओथ कोड जनरेट कर लिया तो उसके बाद फिर से आपको ये फंक्शन कॉल करना है। जैसे ही कॉल करेंगे ये आपका टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है। ये सेशन डॉट सेट टोकन ओथ कोड जो हम इसमें पास करेंगे और रेस्पॉन्स आ जाएगा। रेस्पॉन्स जो आएगा उस रेस्पॉन्स के अंदर आपका एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन दोनों होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट भी कर देता हूँ। एक बार फिर से देख लेंगे, कोई नहीं। दिस इज द URL, हमें ऑथेंटिकेट करना है तो हम यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, अपना ऑथेंटिकेशन डिटेल्स देंगे वन टाइम, ये हमारा कोड जनरेट हो जाएगा। ये कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे ये हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसमें से हम एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन दोनों निकाल लेंगे, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है तो डॉट गेट प्रॉपर्टी लेंगे और इसमें से एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन हम ले लेंगे। और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं राइट द एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन, तो ये हम दोनों राइट कर देंगे, ठीक है। एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन टोकन फाइल में, जो मेन टोकन फाइल है उसके अंदर, ठीक है। एक बार राइट कर दिया, उसके बाद हम उसको रीड करेंगे, टोकन फाइल से रीड करेंगे, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन ले लेंगे और जब हमारे पास अब ये रिफ्रेश टोकन आ जाएगा इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ जनरेटिंग द डेली टोकन। अब हमको क्या करना है, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमको ये हमने मेन टोकन फाइल जनरेट कर लिया। अब इससे हमें डेली के लिए जो हमें टोकन चाहिए वो जनरेट करेंगे। उसका क्या प्रोसेस है, पहले इतना कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा एकदम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं ताकि यहाँ पर आकर हमारा एग्जीक्यूशन रुक जाए। तो एक बार फिर से ये सब कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, एंटर टू कंटिन्यू, तो इसने अब क्या कहो, यहाँ पे टोकन फाइल बन गई आपकी, देखिए मेन टोकन फाइल। इसको अगर हम रीड भी करेंगे ना, ये देखिए एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, दिस इज अ रिफ्रेश टोकन। तो ये हमने राइट कर दिया है फाइल में। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे हम बार बार जनरेट नहीं करेंगे कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डेली टोकन जनरेट करना है। तो उसके लिए भी फायर्स ने आपको कोड दिया है यहाँ पर। अब आपको रिफ्रेश टोकन जनरेट करना है। रिफ्रेश टोकन करने के लिए इन्होंने पाइथन कोड नहीं दिया है, विल कन्वर्ट इनटू इट। तो वो सिंपली क्या कर रहा है कि ये जो आपका URL है, ठीक है, इस URL पर आपको अपना टोकन भेजना है, रिफ्रेश टोकन वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करने के बाद वो आपको टोकन दे देगा। तो यहाँ पर हम ये हेडर से इसके कंटेंट टाइप दिस, और डेटा में हम क्या भेज रहे हैं, रिफ्रेश टोकन, ऐप ID हैश और रिफ्रेश टोकन की वैल्यू। ओके, तो ग्रांट टाइप क्या है, हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिफ्रेश टोकन, ऐप ID हैश, ये कैसे जनरेट करते हैं अभी बताऊंगा, और रिफ्रेश टोकन की वैल्यू जो हमारे पास मेन टोकन फाइल में है, ठीक है, ताकि हम डेली वाली टोकन जनरेट कर सकें, और पिन की वैल्यू। यहाँ पर देखिए ग्रांट टाइप क्या है, ग्रांट टाइप पैरामीटर मस्ट बी सेट टू रिफ्रेश टोकन। ऐप ID हैश क्या है, ये आपकी जो ऐप ID है, क्लाइंट ID है, प्लस जो
सीक्रेट की है, दोनों को आपको कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, एक बार दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, उसके बाद उसका SHA-256 जनरेट करना है, हैश, और वो हैश वैल्यू आपको भेजनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हैश जनरेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, उसमें हमने क्लाइंट आईडी प्लस सीक्रेट की ये पास कर दिया एज अ सिंगल स्ट्रिंग। इस यूआरएल पर हम वैलिडेट करने भेज रहे हैं, हेडर हमने वही सेट किया है। ठीक है, अब हैश आईडी कैसे जनरेट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सिंपल फंक्शन है, आपको जो भी स्ट्रिंग देना है जिसका हैश आपको जनरेट करना है, SHA-256 SHA-256, उसको वो स्ट्रिंग आपको पास करनी है। हैशलिब इज़ अ लाइब्रेरी, उसके अंदर SHA-256 फंक्शन होता है। ठीक है, तो वो हम कॉल करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हैशलिब डॉट SHA-256, तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया SHA-256 अंडरस्कोर हैश। अब इसमें क्या करना है, सिंपल अपडेट कॉल करना है, इनपुट स्ट्रिंग एनकोडिंग UTF-8। ठीक है, जो हमने इनपुट दिया है क्लाइंट आईडी प्लस सीक्रेट की, और ये उसका रिजल्ट हमें दे देगा। ठीक है, और ये रिजल्ट हम पास कर देंगे वापस, मतलब रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन हमें। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था आपको, ये हैश आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट भी कर रहे हैं कि हैश आईडी जनरेट हो रही है। इसके बाद सिंपल ये डेटा है, एग्जैक्टली सेम डेटा है। ठीक है, ग्रांट टाइप, ऐप आईडी, रिफ्रेश टोकन और पिन, ये सब हमने लिया है। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर, बिकॉज वी आर कॉलिंग दिस यूआरएल। ठीक है, तो इस पर डेटा हम पोस्ट कर रहे हैं, दिस इज द डेटा। तो क्या इसका फॉर्मेट क्या है, यूआरएल, जिस यूआरएल पर हमें भेजना है हेडर्स, और जो हमें डेटा भेजना है। ठीक है, जेसन इक्वल्स टू डेटा, दिस इज जेसन फॉर्मेट। हम पोस्ट करेंगे, हमें रेस्पॉन्स आ जाएगा, रेस्पॉन्स डॉट जेसन डॉट गेट एक्सेस टोकन, हमारा एक्सेस टोकन जनरेट हो जाएगा। ये जो एक्सेस टोकन आया है, इस एक्सेस टोकन को हम डेली टोकन फाइल में सेव कर देंगे विद ओपन टोकन डेली एक्सेस टोकन, हम इस फॉर्मेट में सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद फिर इसको हम रीड करेंगे। ठीक है, ये आपका डेटा आ गया एक्सेस डे। ठीक है, और इसके बाद सिंपल हमें फायर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फायर्स ऑब्जेक्ट सिंपल वही आपका फायर्स मॉडल डॉट फायर्स मॉडल आपको कॉल करना है, इसके अंदर क्लाइंट आईडी पास करनी है। ये सिंपल है, जैसे वर्जन 2 में था, सेम है, क्लाइंट आईडी टू क्लाइंट आईडी, टोकन इक्वल्स टू एक्सेस डेली टोकन, ये जो हमने जनरेट किया है। ठीक है, ये सिंक फॉल्स, और हमें लॉग पाथ दे देना है। लॉग पाथ देने के बाद हमें सिंपल कॉल करेंगे, हमारे फायर्स ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा। फायर्स प्रिंट कर रहे हैं, फायर्स ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड। ठीक है, और ये हमें रिटर्न कर देगा। तो यही फंक्शन हमने कॉल किया है फायर्स ऑब्जेक्ट। इसमें अपने हम तीनों पैरामीटर्स पास किए हैं, और उसके बाद एक बार ये जनरेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है वो भी एक देख लेते हैं, छोटा सा एक हिस्ट्री फंक्शन कॉल कर लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं, हिस्ट्री डेटा एपीआई, ओके, हिस्ट्री। तो इसके लिए इन्होंने ये फॉर्मेट दिया है आपका, हम इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं। डेटा में एसबिन है, रिजोल्यूशन डे वाइज हमें डेटा चाहिए, या 5 मिनट का डेटा चाहिए, 10 मिनट का चाहिए। ठीक है, ये सब फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हो क्या क्या फॉर्मेट एप्लीकेबल है। ये सब फॉर्मेट एप्लीकेबल है, सब डिटेल्स आपका फाइल्स एपीआई पे अवेलेबल है। ठीक है, डेट फॉर्मेट, रेंज फ्रॉम, रेंज टू, फ्लैग, यहाँ पे सिर्फ आपको रेंज फ्रॉम, रेंज टू ये चेंज करना है, कब से कब तक का चाहिए। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमें वापस मिलेगा, ये हमें यहाँ पर, और हमें जो भी डेटा आएगा वो पास कर देंगे। अब हम यहाँ पे एंटर मारते हैं, देखिए हमें एसबिन का डेटा मिलना चाहिए। ओके ओके, ये मैं पहले लॉगिंग यूज़ की थी तो वो कुछ कोड रह गया है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। दोबारा, हाँ, ये जो मैंने रिमूव किया था यहाँ पर वो था ये। तो देखिए अब ये आपको दोबारा देखने को मिल जाएगा। अब हमें दोनों फाइल आ गई हैं। ठीक है, अब दोनों फाइल आ गई हैं, तो अब हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। क्या बोल रहा है, डेली टोकन फाइल एग्जिस्ट, डेली टोकन आपका ये है। ठीक है, तो इसने सिंपली वहाँ से उठा लिया है डेली टोकन को। देखिए
तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमने जनरेट किया है मेन टोकन फाइल जो है वो 0.01 डेज ओल्डर है, बिल्कुल न्यू है। दिस फाइल एक्स्ट्रा डॉट टोकन, इस पाथ में जो है टोकन डॉट जेसन फाइल इज नॉट ओल्डर देन 14 डेज। तो ये नई फाइल जनरेट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा। टोकन फाइल एग्जिस्ट करता है, डेली टोकन फाइल को रीड कर लेगा, रीड करने के बाद सीधा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और सीधा आपका एस बिन का डेटा यहाँ पे फैच हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अब आपको डेली जब भी आप करोगे ना तो ये आपको मांगेगा नहीं, कुछ नहीं मांगेगा आपसे, कोई क्रेडेंशियल नहीं, कुछ नहीं। मान लीजिए अब आपका न्यू डे है, ठीक है, हम इसको डिलीट मार देते हैं डेली फाइल को। तो मान लीजिए हमारे पास डेली वाला नहीं है, तो अभी ये सिंपल क्या करेगा, डेली वाला जनरेट करेगा। ये देखिए ये एग्जिस्ट करता है, 14 डेज से ओल्डर नहीं है, नया है, टोकन फाइल एग्जिस्ट। अब देखिए पिछली बार सीधा टोकन था, डेली टोकन था, यहाँ पे इसने पहले रिफ्रेश टोकन जनरेट किया है। ये देखिए यहाँ पे फिर से जनरेट हो गया होगा। ओके, नहीं हुआ है क्योंकि एंटर टू कंटिन्यू, दिस इज द रिफ्रेश टोकन। अब जैसे हम एंटर करेंगे, ये देखिए जनरेटिंग द डेली टोकन, जनरेटिंग द हैश आईडी, ये वही है जो हमने हैश आईडी जनरेट किए थे। अब डेली टोकन जनरेट हो गया, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और ये डेटा हमारा फैच हो गया है। यहाँ पर हमारी दोनों फाइल्स अवेलेबल है। तो इस तरह से आप पूरा जनरेट कर सकते हैं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस आप इसको एनक्रिप्ट करके स्टोर कर सकते हैं। वो सब प्रोसेस अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं ये सब प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा आपको जो कुछ भी चाहिए यू कैन जस्ट राइट इनटू द कमेंट, आई विल हेल्प यू कम्प्लीटली। आपको और भी कुछ कोड्स चाहिए, आपको सुपर टेंट जनरेट करना है, बोलिंजर बैंड जनरेट करना है, व्यू एप जनरेट करना है, मूविंग एवरेज जनरेट करना है, कुछ आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है पाइथन में, आई विल हेल्प यू विद दैट, वी कैन डू ऑल टुगेदर। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज़ द वे वी कैन डू इट ऑल। ठीक है, तो अब आपको 14 डेज तक नहीं मांगेगा, 14 डेज के बाद अगेन वो आपको यूआरएल देगा, आपको ऑथेंटिकेट करना है और फॉर नेक्स्ट 14 डेज आपको कुछ नहीं करना है। ओके, दिस इज़ द वे। एक चीज़ मैंने रह गई आपको, ये कैसे चेक करता है। ठीक है, इज़ फाइल ओल्डर देन गिवन डेज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट मॉडिफाइड टाइम जस्ट क्या है, तो हमने यहाँ पे ओएस लाइब्रेरी यूज़ की है, ओएस डॉट पाथ डॉट गेट टाइम। तो जो हमने फाइल पाथ इज नथिंग, ये जो फाइल का पाथ है ना इसको ये फैच करेगा, तो डॉट गेट टाइम इसका टाइम फैच कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेगा कि लास्ट मॉडिफाइड टाइम जो भी था, तो हमने ये आज कब जनरेट हुई है, 11:45 पर जनरेट हुई है, तो हम मॉडिफाई तो उसको कुछ करेंगे नहीं, प्रोग्राम ही करेगा। तो जिस टाइम जनरेट किया है लास्ट मॉडिफाइड टाइम इज जनरेशन टाइम। ठीक है, तो वो ले लेगा, फिर सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। करंट टाइम को हमने एक वेरिएबल में ले लिया है, फिर टाइम डिफरेंस इन सेकंड्स कैलकुलेट किया है, तो करंट टाइम से लास्ट मॉडिफाइड टाइम को माइनस कर दिया है, जो सेकंड्स आया है उसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अपने फॉर्मेट में, और फिर जस्ट चेक कर रहे हैं कि कितना ओल्डर है। ठीक, ये हमने दिया था ना डेज, तो बस चेक कर रहे हैं कि उससे छोटा है या बड़ा है और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो अगर टाइम डिफरेंस जितना भी है बड़ा है डेज से, तो डेज हमारा 14 है, अगर ये इससे बड़ा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा और छोटा होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और उस अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर हमारा ये एग्जीक्यूट होता रहेगा यहाँ पे। Okay guys, so I hope it helps you with your algo trading. If you like the video, please subscribe the channel, click on like button and let me know in the comment box अगर आपको कुछ और भी चाहिए, we are always ready to help you.